हाय दोस्तों, ब्रास ग्रुप के चैनल में आप सभी का स्वागत है। ब्रास ग्रुप आपके लिए लाया एक नया लेसन। आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। धन्यवाद। Last lecture we have discussed about Salman and Salman case from your case met. ठीक है, केस मेट में के बारे में से डिस्कस किया था एंड इन दैट केस वी हैव डिस्कस अबाउट द कॉर्पोरेट आइडेंटिटी ऑफ द कंपनी एंड along with that we have discussed that in the Salman the court has held that Salman and the Salman's company, though the Salman is a main shareholder and most of the shares are held by the Salman, but even though the company and the Salman both are the different person, because once the company is incorporated, its identity is different from its shareholders, or its identity is different from its the directors. So the liabilities of the companies and the liabilities of their director is also different, and the assets of the company is liable for their own act, and the assets of the directors, they are liable for their own acts because their liabilities are the limited one. So this is a case of the Salman and Salman. Along with this case, there is a case of Lee versus Lee Air Farming Limited. Lee versus Lee Air Farming Limited. In this case also, they are discussed about, if you have your case met, it's a page number 42. Page number 42. It is a fourth case in your case mat. Got the case? केस मिल गया आप लोगों को? ठीक है, फोर्थ केस है आपका केस मैट में, ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग लिमिटेड, एंड दिस केस इज आल्सो रिलेटेड टू द सेपरेट लीगल एंटिटी ऑफ द कंपनी, सालमन का केस और ली वर्सेस लीज एयर फार्मिंग लिमिटेड. अगेन the fact of this case is that if you see the first paragraph of this particular case, it says the appellant's husband. Appellant's husband means here the lady is the lady who is the wife of the Lee, who put who demand for the compensation, who put a petition, who put a file for claiming a compensation from a company, Lee's Air Farming Limited, and the company which is founded by her husband, and the company in which her husband holds the major of the share. Okay, major of the shares were held by the Lee, and this company is established by the Lee, even though the wife is claiming the compensation after the death of the husband. So in this case जो है कोर्ट ने बेसिकली जो है appellant जो है, she is the wife of the deceased, and the deceased here is the Lee. जो ली है वो deceased है यहाँ इस केस के अंदर, and उसी ने ही ली एयर फार्मिंग जो है लिमिटेड कंपनी स्टैब्लिश करी है. मेन जो शेयर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, वो भी ली के पास ही थे, और ली की जो डेथ है वो एयर क्रैश में, during the course of the employment, he is testing something for the purpose of farming के केस के लेकर जो है वो जो कंपनी ने एक एयर एरोप्लेन लिया था, उसको टेस्ट करते हुए उसकी जो है एयर क्रैश में जो है उसकी डेथ हो जाती है. तो उसकी वाइफ जो है, शी वांट्स अ कंपनसेशन अंडर द वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट. जो वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के अंदर जो है उसकी वाइफ क्लेम करती है, बिकॉज कंपनी ने जो ली का जो था वो इंश्योरेंस करवा रखा था, ली का जो है इंश्योरेंस करवा रखा था, एंड शी इज क्लेमिंग कि हर हस्बैंड इज come under the concept of the worker. तो उसका ये कहना था कि मेरा हस्बैंड जो है वो वर्कर की उसमें आता है, तो ये कंपनी की जिम्मेवारी बनती है कि जो उसको कंपनसेशन मिलना चाहिए वो उसको दिया जाए. So if you read the first paragraph, in this they says the appellant husband's Lee formed the respondent company for the purpose of carrying on the business of aerial top dressing of the 3,000 pound shares forming normal share capital of the company. Lee was allotted
2,999 shares, he was appointed the governing director. Lee जो था वो governing director भी था of the respondent company, and pursuant to Article 33 of the Article Association was employed as a chief pilot. ठीक है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के हिसाब से कंपनी के अंदर, जैसे मैंने बताया था आपको, एमओए होता है, देयर इज द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज देयर इन द कंपनी आल्सो. तो ही इज द फाउंडिंग पर्सन. रिस्पॉन्ड जो था एप्लेंट, जो डिसीज था, एप्लेंट का हस्बैंड, ही फॉर्म्ड द रिस्पोंडेंट कंपनी. ही इज द गवर्निंग डायरेक्टर, जो था वो गवर्निंग डायरेक्टर था, एंड ही इज ऑल्सो एम्प्लॉय एज अ चीफ पायलट. उसको चीफ पायलट भी जो है एम्प्लॉय किया गया था ऑफ द कंपनी एट द सैलरी अरेंज बाय हिम. मतलब कंपनी जो उसने खुद ने बनाई थी, उस खुद की कंपनी में ही वो डायरेक्टर भी था, एम्प्लॉय भी था, और वो खुद के लिए उसकी सैलरी भी अरेंज की गई थी. ठीक है. And Article 33 provided that in respect of such employment, the rule of law applicable to the relationship of the master and servant should apply between the company and him. So यहाँ पर कंपनी के बारे में जो इम्पोर्टेंट, जो जिन लॉ पॉइंट्स के ऊपर जो कोर्ट ने डिसीजन दिया कि ली एंड जो लीज एयर फार्मिंग लिमिटेड है, जो डिसीजन कोर्ट का आया वो उसकी वाइफ के फेवर में आया, एपिलेंट के फेवर में डिसीजन दिया आया, और कंपनसेशन जो है उसको ग्रांट किया गया उसके हस्बैंड की डेथ के बाद. और यहाँ पर जो ली को वर्कमैन की जो डेफिनेशन है कंसेप्ट में डाला गया उसको कि ही इज अ वर्कमैन बिकॉज ही हैज एम्प्लॉयड एज ए पायलट, इज अ चीफ पायलट इन द कंपनी, उसको डाला गया. साथ में जो इंपॉर्टेंट चीज इसमें डाला गया, जो कोर्ट ने इस कंटेंशन को देखा था, कंटेंशन विच इज रेज्ड बाय द कोर्ट इज, द इशू विच इज रेज्ड बाय द कोर्ट इज कि इज देयर इज अ रिलेशन बिटवीन ली एंड कंपनी एज ए मास्टर एंड सर्वेंट. क्या कंपनी के बीच में मास्टर और सर्वेंट वाला, ली और कंपनी के बीच में मास्टर सर्वेंट वाला रिलेशनशिप था? सो जहां पर जो ऑपोजिट पार्टी थी, जो ऑपोजिट थी कंपनी थी, जो रिस्पोंडेंट कंपनी का जो लॉयर्स थे, दे हैव टेकन द कंटेंशन कि जो ली था, ही इज हिमसेल्फ अ डायरेक्टर, वो एक डायरेक्टर था, और जो ही इज नॉट, वी कैन, और जो भी अगर उसने अपने आप को ही, अगर ही इज एम्प्लॉयड एज अ चीफ पायलट, तो अगर उसने सैलरी भी नॉमिनेटेड की थी अपने आप को, तो उसने खुद को की थी, तो सारे डिसीजन तो खुद ली लेता था. तो इफ ऑल द डिसीजंस आर टेकन बाय द ली हिमसेल्फ, हाउ कैन वी कंसीडर टू बी ली एज अ सर्वेंट? किस तरीके से हम ली को एक सर्वेंट कह सकते हैं, और किस तरीके से कंपनी को हम मास्टर की डेफिनेशन में फॉल कराते हैं? लेकिन कोर्ट ने इस कंटेंशन को क्लियर किया कि जो एक्ट इसमें डिस्कस किया गया, कंपनीज जो वर्कमैन कंपनी जो है एक्ट इसमें डिस्कस किया गया, दे सेड कि यस जो है ये बेसिकली जो है न्यूजीलैंड का जो था, न्यूजीलैंड वर्कर्स कंपनसेशन एक्ट 1922, इसके अंदर जो है कोर्ट ने ये देखने की कोशिश करी कि क्या जो ली है, ही कम्स अंडर द पर्टिकुलर कंसेप्ट ऑफ द वर्कमैन, क्या वो वर्कमैन की जो डेफिनेशन में कंपनसेशन एक्ट के अंदर आता है 1922 के? सो आंसर वाज द यस. जो आंसर था वो यस था, एंड द मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप जो है वो एग्जिस्ट हुआ, और उस बेस पे जो है कोर्ट ने डिसीजन दिया कि जो एपिलेंट है, appellant has a right to get the compensation after the death of the husband. So इसमें जो है they have discussed the relationship of the master and servant should apply between the company and him. In his capacity, the governing director and controlling shareholder Lee exercised full and unrestricted control the affairs of the respondent company and made all the decisions relating to the contracts for the aerial top dressings, different forms of insurance cover for the benefit of the respondent company and its employee were arranged by the company secretary, and the certain personal accident policies were taken out in the favor of the Lee, the premium in respect of which were paid by the respondent company and debits to the Lee's personal account in the books of your company. The respondent company own an aircraft equipped for top dressing, and Lee was a duly qualified pilot. In March 1956, Lee was killed while piloting the aircraft during the course of aerial top dressing, and the appellant means his wife claimed the compensation under the New Zealand Workman Compensation Act 1922, Section 3, under which if the personal injury by accident arises out of in the course of any employment to which the act applies was caused to the worker, the employer was liable to pay the compensation. ठीक है. फिर उसके बाद if you come to page 43, अगर आप पेज 43 के ऊपर आते हो तो पेज 43 पे जो फर्स्ट पैराग्राफ है, दिस प्रोसीजर वाज अडॉप्टेड बाय द जज
43 page, got the 43 page, 43 ka first paragraph. This procedure was adopted by the judge of the compensation court in action which was brought by the appellant in respect of the death of this husband. She claimed 2430 pounds compensation on behalf of herself and her 4 infant children, and she also claimed a sum for funeral expenses. The claim was made in reliance. These particular paragraphs जो है, this particular paragraph is discussing about the allegation or the relief which is claimed by the appellant. जो appellant है, जो deceased की wife है, Lee's wife जो है, जो relief claim कर रही है, she is claiming that this is much amount of 2430 pounds जो compensation she is claiming for herself and for her 4 जो बच्चे हैं children, and she also claiming for the funeral expenses, and the claim was made in reliance on the provision of the Workmen's Compensation Act 1922 as amended by the latest statute. The appellant's late husband died in an aircraft accident in Canterbury, New Zealand on March 5, 1956 while engaging in the capacity of an aircraft pilot and aerial top dressing operation. The claim of the appellant rests on her allegation that at the time of her death, her husband was a worker. तो ये जो एक इम्पोर्टेंट जो है, जो मेन अगर मैं कहूँ कि कोर्ट के पास क्या इश्यूज थे, कोर्ट के पास मेन इश्यूज था, इज देयर इज अ कंपनी के बीच का मास्टर और सर्वेंट वाला रिलेशनशिप को एक दिस इज अ मेन इशू, एंड सेकेंड इशू जो था कि इज अ वर्कर, जो मेन जो इशू जो कोर्ट के सामने डिसाइड करना था कि क्या वो जो है वर्कर की उसमें आता है. अगर वो वर्कर की उसमें आता है देन द जो है कि जो पर्टिकुलर एक्ट के अंदर जो इसकी वाइफ, ली की वाइफ जो है, जो एपेलेंट है, वो क्लेम कर रही है, दैट इज Workman Compensation Act 1922. She is claiming the compensation under the Workman's Compensation Act 1922 में जो वो क्लेम कर रही है, तो क्या वो वर्कर की डेफिनेशन में आता है? अगर वो वर्कर की डेफिनेशन में आता है देन द कंपनसेशन विल बी गिवन टू हिम. लेकिन दूसरी तरफ से रिस्पोंडेंट कंपनी ये कहने की कोशिश कर रही है कि जो वर्कर का जो मीनिंग जो दिया गया है, द वर्कर्स जो मीनिंग दिया गया है वर्कमैन्स कंपनसेशन एक्ट 1922 में, उसके अंदर जो है ली नहीं फॉल करता. क्यों फॉल नहीं करता? क्योंकि ही इज द फाउंडिंग पर्सन, the person who established the company. He is a governing director in the company. He is the person who hold most of the shares in the company, and even the salary which he engaged or the salary which he has decided for himself, that is decided by the ली हिमसेल्फ. और जितने भी कंपनी के इंपॉर्टेंट मेजर अफेयर्स आर डिसाइडेड बाय द ली. दिस इज द कंटेंशन विच इज टेकन बाय द रिस्पोंडेंट कंपनी. तो कंपनी बोल रही है कि देयर इज नो मास्टर एंड सर्वेंट रिलेशनशिप एग्जिस्ट. मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि ली जो है वो एक मेजर डायरेक्टर था. ठीक है, लेकिन उसकी वाइफ क्या कह रही है कि हर हस्बैंड जो है मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप आता है. हस्बैंड इज गेटिंग अ सैलरी फ्रॉम द कंपनी, फ्रॉम द रिस्पोंडेंट कंपनी, and the husband is fall under the category of the worker under the compensation act जो है, workman compensation जो act 1922 जो है, या workers compensation act 1922 के अंदर वो fall करता है. ठीक है, फिर उसके बाद if you see 43 के अंदर ही जो है फोर्थ पैराग्राफ देखते हो, 2 छोटे छोटे से पैराग्राफ छोड़ के जो मेन पैराग्राफ आता है, अगर आप फोर्थ पैराग्राफ देखते हो, द डिनायल ऑफ द रिस्पोंडेंट कंपनी दैट द डिसीज वाज अ वर्कर वाज बेस्ड ऑन द फैक्ट, डिनायल ऑफ द रिस्पोंडेंट कंपनी दैट द डिसीज वाज अ वर्कर वाज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द डिसीज वाज एट द टाइम ऑफ द एक्सीडेंट द कंट्रोलिंग शेयर होल्डर एंड द गवर्निंग डायरेक्टर ऑफ द रिस्पोंडेंट कंपनी. तो कंपनी जो मैंने आपको पहले ही ऑलरेडी बताया कि कंपनी किस बेस के ऊपर डिनाई कर रही है उसको वर्कमैन के उसमें लाने के लिए, कि कंपनी का जो जितने भी मोस्टली जो शेयर्स हैं वो कौन होल्ड कर रहा है? ली कर रहा है. और ली जो है वो गवर्निंग डायरेक्टर है, तो इसीलिए जो है ही इज नॉट कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ वर्कर. वर्कर वो नहीं है, वो कहीं ना कहीं जो है मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप वाला जो है कंसेप्ट एग्जिस्ट नहीं होता. ठीक है, फिर उसके बाद यू कम टू पेज नंबर 45. पेज नंबर 45 पे पैरा 17 अगेन पैरा 17 में जो है एपेलेंट के रिलीफ को डिस्कस किया गया है. देन उसके पैरा 17 से जो नीचे है, द क्वेश्चन विच वाज रेज फॉर द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट ऑफ अपील
यानी जो इशू जो कोर्ट के सामने फ्रेम हुआ, दैट इज प्रोवाइडेड इन द पैरा 17 के जो सेकंड पैराग्राफ है, गॉट द पैरा 17, पैरा 17 का जो, आप लोग अपनी ऑडियो ऑन कर सकते हो इस दौरान। पैरा 17 का जो पैराग्राफ सेकंड है, उसमें जो है बेसिकली जो है इशू, या कह लो कि जो कोर्ट ने इशू जो रेज किया, द क्वेश्चन विच was raised for the opinion of the court of appeal was whether at the time of his accident the deceased was employed by the respondent company as a worker within the meaning of workers compensation act 1922। so यहाँ पर जो है मेन जो इशू को कोर्ट को ये डिसाइड करना था कि क्या वो वर्कमैन की डेफिनेशन में फॉल करता है, अलॉन्ग विद दैट कि क्या जो है मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। फिर पैराग्राफ पेज 46 पे आओ, पेज 46 पे, एंड पैराग्राफ 3, पेज 46, paragraph 3, the substantial question which arises is, as their lordship think, whether the deceased was a worker within the meaning of Workmen Compensation Act and the amendments, and is a person who had entered into a work under a contract of service with the employer. The Court of Appeal proved that his special position as governing director preclude him from being a servant of the respondent company. On the view, it is difficult to know what his status and position was when he was performing the address and skillful duty of the piloting an aeroplane, which belonged to the respondent company, and when he was carrying out the operation of top dressing farming land from the air. He was paid wage. This is important line. He was paid wages for so doing. The respondent company kept a wages book in which these were recorded. तो कोर्ट ने क्या कहा कि ही इज अ पेड, जो पेड पायलट था वो, और उसकी जो वेज जो उसको जो पेमेंट दी जा रही थी वो किसमें रिकॉर्डेड की जाती, वेज बुक के अंदर। द वर्क दैट वाज बीइंग डन at the request of the farmers who contractual rights and the obligation were with the respondent company alone। तो वो भी जो काम किसके साथ कर रहा था, वो कंपनी का काम ही कर रहा था जिसमें कंपनी ने फार्मर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था। सेकंड थिंग, and it cannot be suggested that when engaged in the activities above referred to, that he was discharging his duty as a governing director। कहता है जब जिस समय वो काम में जो पायलटिंग का काम कर रहा था, जिस वजह से उसको engaged किया गया था, he is doing the things under the obligation of the company alone. He is not doing the things which is in the capacity of the governing director। governing director की कैपेसिटी में वो काम नहीं कर रहा था, वो काम कैसे क्या कर रहा था, एम्प्लॉय के तौर पे कर रहा था। उसकी वेज नोटिफाई की जाती थी, नोट की जाती थी, एंड अलॉन्ग विद दिस कि जो रिस्पोंडेंट कंपनी है, रिस्पोंडेंट कंपनी ने जो है उसकी ऑब्लिगेशन जो थी फार्मर्स के साथ जो कॉन्ट्रैक्चुअल राइट था, उस ऑब्लिगेशन को फुलफिल करने के लिए ही हैज टेकन द स्टेप। So their lordship find it impossible to restrict the conclusion that the activity aerial operation were performed because the deceased was in some contractual relation with the respondent company। The relationship came about because the deceased as one of the legal person was willing to work for and for make a contract with the respondent company। इसको भी underline कर लो, which was another legal entity। तो यहाँ पर कहा क्या कि फार्मर के साथ तो कंपनी का था ही कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन जो ली था उसका भी कंपनी के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट में था, और वो कॉन्ट्रैक्ट किस चीज का था, जो टू फ्लाई द एरोप्लेन, जो एरोप्लेन को फ्लाई करने का होता है, रिस्पोंडेंट कंपनी के साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट था। और यहाँ पर जो ली है वो एक इंडिविजुअल पर्सन था, और इंडिविजुअल पर्सन ने एक इंडिविजुअल पर्सन, और यहाँ पर एक अलग इंडिविजुअल पर्सन कौन था, कंपनी। यानी कि दो इंडिविजुअल पर्संस जो हैं आपस में एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो है एंटरटेन हुए हैं। तो यहाँ पर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप, देयर इज अ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप बिटवीन द कंपनी एंड द ली, एंड द रिलेशनशिप कुड आल्सो बी एग्जिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर वाज कंसाइंड बिटवीन द टू कॉन्ट्रैक्टिंग। तो यहाँ पर बोला कि दोनों ही सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो एक और चीज यहाँ पर आई कि अगर जो उसकी वाइफ अपील ले रही है, देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ली एंड द कंपनी। तो यहाँ पर जो कोर्ट ने जो जिस बात का ध्यान दिया कि बोथ आर द लीगल पर्सन, ली अपने आप एक इंडिविजुअल पर्सन है, कंपनी अपने आप एक इंडिविजुअल पर्सन है। ली और कंपनी जो है वो दोनों जो है कॉन्ट्रैक्ट एक दूसरे के साथ कर सकते हैं, एंड दोनों ही आर द कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। दिस वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ली भी जो है वो कॉम्पिटेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि सेक्शन जो 10 है ऑफ द कंपनीज एक्ट
पर्सन शुड बी कॉम्पिटेंट बिफोर डूइंग एनी कॉन्ट्रैक्ट, तो वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए। यहाँ पर ली भी कॉम्पिटेंट है और कंपनी भी क्या है, कॉम्पिटेंट है। तो उस सिचुएशन में द कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन डन बिटवीन द पार्टी, ठीक है। फिर उसके साथ यू कम टू पेज 49। पेज 49 के ऊपर अगर आप आते हैं तो पेज 49 के ऊपर फोर्थ पैराग्राफ, इफ यू सी द फोर्थ पैराग्राफ, in the present case, if you see the fourth paragraph on page 49, in the present case, their lordship see no reason to doubt that the valid contractual relationship could be created between the respondent company, ठीक है। तो वहां पर हमने क्या किया, there was a relationship, contractual relationship जो है, कोर्ट ने यहाँ कंटेंशन क्या दिया, कोर्ट ने क्या डिसाइड किया, lordship had decided there is a contractual relationship between the respondent company and the deceased, even though deceased would act as an agent of the company in this creation. If such a relationship could be established, their lordship, there is no reason why it should not take on the form of the master and servant relationship. The facts of the present case lead no support for the contention that if it is contract existing, it was a contract for service. Article 33 shows that what was designed and contemplated was that after its incorporation, the respondent company would, as a master, employ the deceased as a servant in the capacity of the chief pilot of that company. All the facts and all the evidence as to what was actually done point to the conclusion that what purport to be contract of the service was entered into and was operated, unless this was impossibility in the law that the deceased was a worker within the statutory definition as referred the above, ठीक है। फिर उसके साथ इसके along with ये पैराग्राफ भी आप लोगों को पढ़ना है, उसके साथ जो पैराग्राफ है, the lordship concluded, the last line है, the last line में क्या, last line is very important one, ex faces there was a contract of service. Their lordship concluded, therefore, that the real issue in the case is whether a position of the deceased as a sole governing director made it impossible for him to be the servant of the respondent company in the capacity of the chief pilot of that company. In their lordship view, for the reason which has been indicated, there was no such impossibility. There appears to be not a greater difficulty in holding that a man acting in one capacity can give order to himself. This is again very important line. Acting in one capacity can give order to himself in another too. The members can do. So सिर्फ जो है एक कंपनी की शेडो के पीछे वो ये नहीं ले सकते कि भी कंपनी जो है लाइबल है, हम लाइबल नहीं है। तो यहाँ पर भी वही सेम चीज है कि आप जो है वो जो बेनिफिट, सिंपल सी जो इसमें एक बात की गई, जो चीज कॉन्स्टिट्यूशन जो है डायरेक्टली कंपनी को प्रोवाइड नहीं कर रहा है, वो बेनिफिट कंपनी को इनडायरेक्टली भी नहीं मिलेगा। जो बेनिफिट, the benefit which is provided by the constitution, the benefit which is not directly provided to the company through the constitution, that benefit indirectly also cannot provide to the कंपनी को इनडायरेक्ट बेनिफिट भी नहीं प्रोवाइड किया जाएगा अगर कॉन्स्टिट्यूशन उसको डायरेक्ट बेनिफिट नहीं दे रहा। अगर लेजिस्लेचर का इंटेंशन होता कंपनी को फंडामेंटल राइट्स देने का, कंपनी को जो है सिटीजन्स की डेफिनेशन में फॉल कराने का, तो एक्सप्रेसली जो है लेजिस्लेचर उसको मेंशन करती। सो एक्सप्रेसली नोवेयर इट इज मेंशन, एक्सप्रेसली जो है कहीं पर भी ये मेंशन नहीं किया गया है, एक्सप्रेसली कहीं पर भी ये मेंशन नहीं किया गया है कि कंपनी को जो है सिटीजन बनाया जाएगा। एक्सप्रेसली जो बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी और एक्सप्रेसली जो है सिटीजनशिप एक्ट के अंदर भी जो है सिटीजनशिप एक्ट के अंदर भी ये क्लियरली मेंशन किया गया है कि जो नेचुरल पर्सन है that will be considered as a citizen of India, not the artificial person. अगर legislature का intention कंपनी को बनाने का भी होता तो वहां पर मेंशन किया जाता होता कि जो है कि कंपनी इज ऑल्सो कंसिडर टू बी अ सिटीजन, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर केस के जो फैक्ट्स हैं, इस केस के जो पर्टिकुलर फैक्ट्स हैं, इस केस के जो पर्टिकुलर फैक्ट्स हैं, उस केस के फैक्ट्स में दे हैव डिस्कस कि there are 3 petition। अगर आप केस के सबसे पहले फर्स्ट पैराग्राफ को if you see the first paragraph, so they have mentioned the 3 writ petition
3 रिट पिटीशन आई हैं इसके अंदर अगेंस्ट द दैट इज स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, जो कंपनी है एक गवर्नमेंट कंपनी है और उसने जो है स्टेट ऑफ जो है इनकम टैक्स जो है कमिश्नर टैक्स ऑफिसर जो है उसके अगेंस्ट जो है वो पिटीशन फाइल करी है और दे वांट द रिट पिटीशन कि जो कमिश्नर ने जो इनकम टैक्स जो कमिश्नर ने जो भी टैक्स के रिलेटेड जो भी ऑर्डर पास किया है जो गवर्नमेंट कंपनी है जैसे बेसिकली द स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन जो है कंपनी है, दे वांट कि वो जो ऑर्डर है कमिश्नर फॉर टैक्स ऑफिसर जो है वो उसको वापस ले ले। बेसिकली इस केस में ये हुआ है कि एक कंपनी ने जो है टैक्स से रिलेटेड टैक्स पर्पस को अपने टैक्स से बचने के लिए या टैक्स से रिलेटेड जो भी ऑर्डर पास किया गया कमर्शियल टैक्स ऑफिसर ने उसको रिलेटेड हुए रिट पिटीशन फाइल करी है उन्होंने। दे वांट द बेनिफिट कि वो ऑर्डर जो है कमीशन उसको वापस ले ले। और जो फर्स्ट पिटीशन जो फाइल की गई दैट इज फाइल बाय द स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन। स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ने फर्स्ट पिटीशन फाइल करी है अगेंस्ट द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड पिटीशन जो फाइल की गई दैट इज बाय द केबी लाल। केबी लाल इज अ फाइलिंग बाय द पिटीशन, इज अ एडिशनल सेक्रेटरी जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर। केबी लाल ने फाइल करी। ही इज अ शेयर होल्डर, वो शेयर होल्डर है। अगेन ही इज अ फाइलिंग अगेंस्ट द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश जो है स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश के अगेंस्ट फाइल करी गई फॉर अगेन फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स को लेकर। देन द थर्ड पिटीशन जो है पिटीशनर जो है दोनों ही सेम थे, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन थी प्लस केबी लाल थे। दे पिटीशनर आर द सेम थर्ड पिटीशन में भी, बट यहाँ पर जो पिटीशन इन्होंने फाइल करी अगेंस्ट द स्टेट ऑफ बिहार। तो स्टेट ऑफ बिहार के अगेंस्ट इन्होंने पिटीशन जो है फाइल करी है। तो अभी के लिए जो है आप लोगों के लिए एक होमवर्क छोड़ रही हूँ। ठीक है, आप लोगों को फर्स्ट पैराग्राफ मार्क करो, पहले फर्स्ट पैराग्राफ मार्क करो, फर्स्ट पैराग्राफ मार्क करो। देन पैराग्राफ पूरा का पूरा पेज जो है पेज 20, पूरा का पूरा पेज 20 यू पीपल हैव टू बी रीड आउट। ठीक है, पैराग्राफ फर्स्ट जो है, पैरा जो सेकंड है जहां पर जस्टिस बीपी सिन्हा लिखा हुआ है, इसमें सारे इश्यूज को डिस्कस किया गया है। ठीक है, पूरा का पूरा पेज 20, देन पेज 21 पे अगेन पेज 20, 21 दोनों ही पेज पढ़ोगे आप पूरे के पूरे। देन पेज 22 पे पैरा 6 एंड पैरा 7 लिखा हुआ है ना, सेकंड पैरा एंड थर्ड पैरा नंबरिंग दी हुई है 6 और 7 की, वो दोनों पैराग्राफ। देन 23rd पेज पे सेकंड पैराग्राफ जहां पर नंबरिंग 8 दी हुई है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। ठीक है, 23rd पेज पे सेकंड पैराग्राफ जहां पर नंबरिंग 8 दी हुई है। फिर उसके बाद सबसे लास्ट पैराग्राफ 23rd पेज पे, 23rd पेज पे सबसे लास्ट पैराग्राफ जिसपे नंबरिंग 14 दी हुई है, 14 दी हुई है, 14 दी हुई है। ठीक है, लास्ट पैराग्राफ 23rd पेज का। फिर उसके बाद 25 पेज पे आइए, 25 पेज पे पैराग्राफ 17, पैराग्राफ 18 नंबरिंग दी हुई है 17 एंड 18 की दी हुई है। 25 पैराग्राफ पेज पे सेकंड पैराग्राफ एंड थर्ड पैराग्राफ नंबरिंग 17 एंड 18 दी हुई है। गॉट द पैराग्राफ और नॉट? पैराग्राफ्स मिले आप लोगों को? नहीं? यस मैम। ठीक है, ठीक है, दिस वर द इम्पोर्टेंट पैराग्राफ। और अगर आप फैक्ट्स तो मैंने आप इसमें जो है बेसिकली इन्होंने अगर आप इसको देखोगे, अब मैं अगर स्टार्टिंग के पैराग्राफ्स पढ़ती हूँ, अगर आप पैराग्राफ 1 पे आते हो, इन दिस 3 रिट पिटीशन the State Trading Corporation of India Limited and KB Lal, who at the time of the filing of petition was additional secretary minister of the commerce and industry and government of India,
but in no longer holding such office now are the petitioner who seek relief against the state of Andhra Pradesh in the 2 of the petition and the state of Bihar in the 3rd petition by issuance of the writ of certiorari. ठीक है ना, आपको पता होगा कॉन्स्टिट्यूशन में कि certiorari की जो रिट है वो क्यों लगाई जाती है, किसी भी ऑर्डर को क्वैश करने के लिए. Then if you see the second paragraph of this page, जहां पर फर्स्ट इशू जो रेज हुआ कोर्ट के सामने, whether the state trade corporation, a company registered under the Indian Company Act, is a citizen within the meaning of Article 19 of the Constitution and can ask for the enforcement of fundamental rights granted to the citizen under the said articles. बेसिकली क्या कंटेंशन था कि अगर आप आर्टिकल 19G देखते हैं तो आर्टिकल 19G में क्या लिखा गया है कि फ्रीडम ऑफ डूइंग अ बिजनेस, ठीक है, आप किसी भी तरीके का कर सकते हो, तो वहां पर किसी भी कंपनी को किसी भी तरीके से अपना मैनेज कर सकती है. लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि अगर एक 19G के अंदर आप कंपनी को कोई भी अफेयर्स या कोई भी बिजनेस करने का अथॉरिटी दे दी गई है लीगल बेसिकली, या अपने आप को किसी भी स्टेट के अंदर किसी भी फ्रीली मूवमेंट जो है कंपनी को अलाउ कर दी गई है 19G के अंदर, तो इसका मतलब ये नहीं है कि क्या 19G की जो प्रोविजन है वो ऑटोमेटिकली कंपनी को फंडामेंटल राइट्स जो प्रोवाइडेड किए गए पार्ट 3rd ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में वो ट्रेड लीगल ट्रेड कर सकती है कंपनी, बट 19G के अंदर फॉल कराने, क्योंकि 19 जो है अपने आप में एक फंडामेंटल राइट है, तो अपने आप में एक फंडामेंटल राइट के अंदर कंपनी को फॉल करवाने का, पर्टिकुलर क्लॉज में फॉल करवाने का मतलब ये नहीं है कि और ऑटोमेटिकली जो है जो आर्टिकल 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है वो कंपनी आ जाती है, या जो सिटीजनशिप जो एक्ट बना हुआ है उसके अंदर जो है कंपनी ऑटोमेटिकली फॉल करती है. क्योंकि दे हैव क्लियरली मेंशन इन दिस एक्ट कि अगर लेजिस्लेचर का कोई भी पर्पस होता, क्योंकि वी कैन नॉट गो बियॉन्ड द लेजिस्लेचर, जो लेजिस्लेचर ने लिखा उसके बिहार हम नहीं जा सकते हैं. सो अगर कोई भी लेजिस्लेचर का इंटेंशन इस तरीके का होता कंपनी को एक सिटीजन्स की उसमें कैटेगरी में लेके आने का, तो दे विल क्लियरली मेंशन इट, एक्सप्रेसली मेंशन करते. कहीं पर भी एक्सप्रेसली मेंशन नहीं किया गया इस चीज को, एंड एक्सप्रेसली मेंशन किस चीज को किया गया है, दे हैव मेंशन क्लियरली दैट द नेचुरल पर्सन. अगर आर्टिकल 5 में भी नेचुरल पर्सन के बारे में बात की गई है, और जो इंडियन सिटीजनशिप एक्ट है उसमें भी जो है उसकी प्रोविजंस भी जो है वो कहीं ना कहीं जो है नेचुरल पर्सन को ही डिस्कस की गई है. तो यहाँ पर इन्होंने दे हैव सेड कि अगेन फिर देन इन्होंने जो है क्लॉज 2 लिया, पेज 20 पे अगर देखो इशू 2 में दे हैव सेड कि वेदर द स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन इज नॉट स्टैंडिंग विद द फॉर्मेलिटीज ऑफ इनकॉर्पोरेशन अंडर द इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 इज सब्सटेंस ऑफ द सब्सटेंस द डिपार्टमेंट एंड द organ of the government of the India with the entities of its capital contributed by the government, and it can be claimed to enforce the fundamental rights under the part 3rd of the constitution against the state and defined in the article 12. ठीक है. फिर उसके बाद अगर पैरा 5 पढ़ूं तो पैरा 5 is the main one. Before dealing with the argument at the bar, it is convenient to set out the relevant provision of the Constitution, Part 3 of the Constitution dealing with the fundamental right. Some fundamental rights are available to any person. See, यहाँ पर इन्होंने एक बात जो पैरा 5 में कही है कि even कि Part 3 में भी यहाँ पर 2 वर्ड यूज किए गए, एक any person और एक citizens. तो यहाँ पर इन्होंने बात करी है कि लेजिस्लेशन ने क्लियरली फंडामेंटल के में भी ये लिखा है कि कौन से राइट्स सिटीजन्स को मिलेंगे और कौन से राइट किसी को भी मिल सकते हैं. तो 2 वर्ड्स यहाँ पर यूज हो रहे हैं, एनी पर्सन एंड द वर्ड इज सेकंड वर्ड इज द सिटीजन वन. तो किसको क्या यूज हो, किसको क्या मिलेगा, तो पर्टिकुलर एक्ट में लिखा गया है. तो यहाँ पर उन्होंने दे हैव सेड कि पार्ट 3rd ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द फंडामेंटल राइट्स एंड सम फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल टू एनी पर्सन वेयर द अदर फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी अवेलेबल ओनली कैन be available only to all citizens. This is very important point. ठीक है, equality before the law or equal protection of the law within the territory of India is available to any person. The protection against the enforcement and ex post facto to all the persons. So it is the protection of the life and personal liberty under Article 21 and the protection against the arrest and detention in certain cases. Article 22, civil freedom of conscience and the freedom of profession is granted to all the person. And Article 27, again, it's related to that no person shall be compelled to pay any tax of the promotion of maintenance. Then again, it is for the person. Then they have said कि उसके बाद अगर आप 4-5 लाइनें छोड़ो, फिर then start में 4-5 लाइनें छोड़ने के बाद they said कि no property shall be compulsory acquired or requisitional except in accordance with the law as contemplated by the Article 31.
these in the general term without going to in detail with the limitation and restriction provided by the constitution, all the fundamental rights which are available to any person, irrespective of whether he is a citizen of India or an alienee or whether a natural or artificial person. On the other hand, certain other fundamental rights has been granted by the constitution only to the citizen, and certain disabilities imposed upon the state with respect to the citizens only. This is very important one. अगर आप ये 3-4 लाइनें पढ़ो, fundamental rights which are available to the person irrespective of whether he is a citizen of India, alienee, or whether a natural or artificial person, or the other hand, certain fundamental rights have been granted to the constitution only to the citizens of the India, disabled and imposed upon the state with respect to the citizens only. So यहाँ से आपको ये बात clear हो जाती है कि जो है कि फंडामेंटल राइट्स के अंदर भी इन्होंने डिवीजन की है कि चाहे वो सिटीजन ऑफ इंडिया जो है या किसी एनी पर्सन के लिए होगा. अगर आप इसी पैराग्राफ के लास्ट लाइन में पढ़ेंगे तो कहेंगे आर्टिकल 19 विद विच वी आर डायरेक्टली कंसर्न्ड इन द प्रेजेंट कंट्रोवर्सी. Each of these granted right under clause A to G is subject to the limitation or resistance indicated in the clause 2 to 6 and the article of the rights granted to all the citizens. Those under clause A to A aforesaid are particularly opposed to the natural person, whereas the freedom under clause F and G aforesaid may be equally enjoyed by the natural person or by the juristic person. तो यहाँ पर clearly क्या लिखा है इन्होंने कि सिर्फ 19G में, यानी कि आपको आपका कोई भी प्रोफेशन या कोई भी ऑक्यूपेशन या कोई भी ट्रेड या एक नेचुरल पर्सन भी कर सकता है और जुरिस्टिक पर्सन भी, द पर्सन हु इज अ लीगल पर्सन इन द आई ऑफ द लॉ, दैट इज मीन द कंपनी को बेशक 19G के अंदर फ्रीडम ट्रेड करने का राइट दिया गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो पार्ट 3 है उसमें उसको फंडामेंटल राइट्स जो है उसको प्रोवाइड की गई है, क्योंकि पार्ट 3 में भी 2 पॉइंट्स को डिस्कस किया गया है कि अगर कुछ फंडामेंटल राइट्स ग्रांट होंगे तो कुछ एनी पर्सन वर्ड यूज किया गया है, अगर वो पर्टिकुलरली सिटीजन्स को प्रोवाइड किया जाएगा तो वो सिटीजन्स को दिया गया है. और पर्सन की डेफिनेशन में यहाँ पर नेचुरल पर्सन आ रहा है, जुरिस्टिक पर्सन नहीं आ रहा है. अगर जुरिस्टिक पर्सन वर्ड यूज किया गया है तो पर्टिकुलर लेजिस्लेशन ने सिर्फ 19G के अंदर यूज किया है, तो सिर्फ 19G के अंदर कंपनी फॉल करती है, बाकी कहीं पर भी कंपनी को फंडामेंटल राइट्स ग्रांटेड नहीं. ठीक है, तो आप लोग को जो मैंने इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स मार्क करवाए हैं प्लीज उसको रीड आउट करो. वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास. ठीक है, किसी ने कुछ पूछना हो, किसी ने कुछ ऐड ऑन करना हो. Last lecture we have discussed about Salmond and Salmond case from your case met. ठीक है, केस मेट में के बारे में से डिस्कस किया था, एंड इन दैट केस वी हैव डिस्कस अबाउट द कॉर्पोरेट आइडेंटिटी ऑफ द कंपनी, एंड along with that we have discussed that in the Salmond the court has held that Salmond and the Salmond's company, though the Salmond is a main shareholder and the most of the shares are held by the Salmond, but even though the company and the Salmond both are the different person, because once the company is incorporated, its identity is different from its shareholders, or its identity is different from its the directors. So the liabilities of the companies and the liabilities of their director is also different, and the assets of the company is liable for their own act, and the assets of the directors, they are liable for their own acts because their liabilities are the limited one. So this is a case of the Salmond and Salmond. Along with this case, there is a case of Lee versus Lee Air Farming Limited. Lee versus Lee Air Farming Limited. In this case also, they are discussed about, if you have your case met, it is a page number 42. Page number 42. It is a fourth case in your case mat. Got the case? केस मिल गया आप लोगों को? ठीक है, फोर्थ केस है आपका केस मैट में, ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग लिमिटेड, एंड दिस केस इज आल्सो रिलेटेड टू द सेपरेट लीगल एंटिटी ऑफ द कंपनी. सालमन का केस और ली वर्सेस लीज एयर फार्मिंग लिमिटेड. अगेन the fact of this case is that if you see the first paragraph of
this particular case. This says the appellant's husband. Appellant's husband means here the lady is the lady who is the wife of the Lee, who put who demand for the compensation, who put a petition, who put a file for claiming a compensation from a company, Lee's Air Farming Limited, and the company which is formed by her husband, founded by her husband, and the company in which her husband holds the major of the share. Major of the shares were held by the Lee, and this company is established by the Lee, even though the wife is claiming the compensation after the death of the husband. So in this case, the जो है कोर्ट ने basically जो है appellant जो है, she is the wife of the deceased, and the deceased here is the Lee. जो ली है वो deceased है यहाँ इस केस के अंदर, and उसी ने ही ली एयर फार्मिंग जो है लिमिटेड कंपनी स्टैब्लिश करी है. मेन जो शेयर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, वो भी ली के पास ही थे, और ली की जो डेथ है वो एयर क्रैश में ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, ही इज टेस्टिंग समथिंग फॉर द पर्पस ऑफ फार्मिंग के केस के लेकर जो है वो जो कंपनी ने एक एयर एरोप्लेन लिया था, उसको टेस्ट करते हुए उसकी जो है एयर क्रैश में जो है उसकी डेथ हो जाती है. तो उसकी वाइफ जो है, शी वांट्स अ कंपनसेशन अंडर द वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट. जो वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के अंदर जो है उसकी वाइफ क्लेम करती है, बिकॉज कंपनी ने जो ली का जो था वो इंश्योरेंस करवा रखा था, ली का जो है इंश्योरेंस करवा रखा था, एंड शी इज क्लेमिंग कि हर हस्बैंड इज come under the concept of the worker. तो उसका ये कहना था कि मेरा हस्बैंड जो है वो वर्कर की उसमें आता है, तो ये कंपनी की जिम्मेवारी बनती है कि जो उसको कंपनसेशन मिलना चाहिए वो तो वो उसको दिया जाए. So if you read the first paragraph, in this they says कि appellant husbands Lee formed the respondent company for the purpose of carrying on the business of aerial top dressing of the 3,000 pound shares forming normal share capital of the company. Lee was allotted 2,999 shares. He was appointed the governing director. Lee जो था वो governing director भी था of the respondent company, and pursuant to Article 33 of the Article Association was employed as a chief pilot. ठीक है, Article of Association के हिसाब से कंपनी के अंदर जैसे मैंने बताया था आपको MOA होता है, there is the article of association is there in the company also. So he is the founding person, जो था appellant, जो deceased था, appellant का husband. He formed the respondent company. He is the governing director, जो था वो governing director था, and he is also employed as a chief pilot. उसको chief pilot भी जो है employ किया गया था of the company at a salary arranged by him. मतलब कंपनी जो उसने खुद ने बनाई थी, उस खुद की कंपनी में ही वो डायरेक्टर भी था, एम्प्लॉय भी था, और वो खुद के लिए उसकी सैलरी भी अरेंज की गई थी. ठीक है. And Article 33 provided that in respect of such employment, the rule of law applicable to the relationship of the master and servant should apply between the company and him. So यहाँ पर कंपनी के बारे में जो इम्पोर्टेंट जो जिन लॉ पॉइंट्स के ऊपर जो कोर्ट ने डिसीजन दिया कि ली एंड जो लीज एयर फार्मिंग लिमिटेड है, जो डिसीजन कोर्ट का आया वो उसकी वाइफ के फेवर में आया, एपेलेंट के फेवर में डिसीजन दिया आया, और कंपनसेशन जो है उसको ग्रांट किया गया उसके हस्बैंड की डेथ के बाद. और यहाँ पर जो ली को वर्कमैन की जो डेफिनेशन है कंसेप्ट में डाला गया उसको कि ही इज अ वर्कमैन बिकॉज ही हैज एम्प्लॉयड एज ए पायलट, इज अ चीफ पायलट इन द कंपनी, उसको डाला गया. साथ में जो इंपॉर्टेंट चीज इसमें डाला गया, जो कोर्ट ने इस कंटेंशन को देखा था, कंटेंशन विच इज रेज्ड बाय द कोर्ट इज द इशू which is raised by the court is is there is a relation between Lee and a company as a master and servant. क्या कंपनी के बीच में मास्टर और सर्वेंट वाला ली और कंपनी के बीच में मास्टर सर्वेंट वाला रिलेशनशिप था. सो जहां पर जो ऑपोजिट पार्टी थी, जो ऑपोजिट थी कंपनी थी, जो रिस्पोंडेंट कंपनी का जो लॉयर्स थे, दे हैव टेकन द कंटेंशन कि जो ली था, ही इज हिमसेल्फ अ डायरेक्टर, वो एक डायरेक्टर था, और
जो ही इज नॉट वी कैन, और जो भी अगर उसने अपने आप को ही अगर ही इज एम्प्लॉयड एज ए चीफ पायलट, तो अगर उसने सैलरी भी नॉमिनेटेड की थी अपने आप को, तो उसने खुद को की थी, तो सारे डिसीजन तो खुद ली लेता था। तो इफ ऑल द डिसीजंस आर टेकन बाय द ली हिमसेल्फ, हाउ कैन वी कंसीडर टू बी ली एज ए सर्वेंट? किस तरीके से हम ली को एक सर्वेंट कह सकते हैं और किस तरीके से कंपनी को हम मास्टर की डेफिनेशन में फॉलो कराते हैं। लेकिन कोर्ट ने इस कंटेंशन को क्लियर किया कि जो एक्ट इसमें डिस्कस किया गया, कंपनीज जो वर्कमैन कंपनी जो एक्ट में डिस्कस किया गया, दे सेड कि यस जो है ये बेसिकली जो है न्यूजीलैंड का जो था, न्यूजीलैंड वर्कर्स कंपनसेशन एक्ट 1922, इसके अंदर जो है कोर्ट ने ये देखने की कोशिश करी कि क्या जो ली है ही कम्स अंडर द। दोस्तों, ब्राज ग्रुप आशा करता है कि आप सभी लोगों को ये लेसन पसंद आया होगा। आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।